Hey guys, good evening. So welcome back to channel. So Apasav here. So today topic is CRUD operation, image upload, image upload जो हम यूज करेंगे. सो हमारा जो रहेगा उसके अंदर नेस्ट जेएस. ओके, नेस्ट जेएस फ्रेमवर्क, ग्राफ क्यूएल, टाइप यूआरएम, मोंगोडीबी. उसके जो हम मेथड यूज करने वाले हैं, कोड फर्स्ट रहेगी, ना कि हमारा स्कीमा फर्स्ट रहेगी. और कोई हमारी ये जो हम यूज करेंगे ये ग्राफ के यूज करेंगे. सो इससे पहले मैंने वीडियो क्रिएट किए थे, हाउ टू कर्ड ऑपरेशन इन नेस्ट जेएस, फिर बाद में इमेज अपलोड, ये सेपरेट सेपरेट वीडियो क्रिएट किए थे. बट इस वीडियो में हम दोनों एक साथ में डिस्कस करूंगा और आपको उसका आउटपुट शो करूंगा. और उसके बाद मैं उसके फर्स्टली कोड फर्स्टली मैं उसका डिजाइन आउटपुट और लास्ट में हम उसका कोड देखेंगे. सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका अंदर में डीपली तो नहीं कहेंगे, एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज नेस्ट जेएस, व्हाट इज ग्राफ क्यूएल, टाइप ओआरएम, मोंगोडीबी, नॉन एसक्यूएल. इसके बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ज्यादा आपको डिटेल्स में चाहिए तो सिंगल सिंगल वीडियो देख लेना, तो आपको वहां पर एज अ यहाँ से वहां पर बेटर आइडिया आ जाएगी. सो डायरेक्टली मेरा फोकस रहेगा कर्ड ऑपरेशन और इमेज अपलोडिंग का. ये दो टास्क इस वीडियो में शो करने का रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली आई विल शो आउटपुट एंड देन गो टू कोडिंग. ओके. Okay, so this is admin portal as a temporary project, uh, uh, is a production project. So going here lab. Okay, lab here, going to lab here showing. So this is firstly I will show the create record. After that remove record, sorry, update, image upload, and also the delete record. So all operation is here covered. Firstly I will create records like this, test. Okay, yeah, I click on save, then record is created. Okay, so here is recording created. Check. Yeah, test. Okay, and also the production is created. So after that I modify some here like as a test one. Okay, the recording is updating. Okay, so I click on yes, record is updated successfully. Yeah, this one. Also the image, I click on image here. Okay, so click on here, then click on GraphQL, image is uploading. Okay, right now image is uploading on specific record. I will show also, yeah, this one. Also the this one record I will delete. Yeah, record is deleted. So going on top, okay, then click on test one, test, yeah, lab logo. Click on lab like as Apple. Okay, so after that I click on save. Okay, record is created. Immediately response, because GraphQL and Nest.js is very fastly and smoothly working. So here is record is created, logo here showing logo. This is web URL. Okay, so uploaded on server, then showing the URL. So firstly, this is output. Okay, so we will discuss step by step. Firstly, I will show React code and also going to Node.js. So my React code, firstly going to I will show you app structure. Okay, folder structure firstly discuss, and then going to step by step. Yeah, this is my project structure. Okay, so here is src. src is main project. Okay, src is main folder. Going to inside library going to inside modulars. Okay, modulars inside going here created Apollo clients. So what is Apollo client? Before I told you what is Apollo client. Also, brief of introduction Apollo client explain you. So Apollo client is tool for communication of server GraphQL and client GraphQL, means website and also mobile site. So using tool, so communication of GraphQL
like as a we will before any API calling, so using exhaust or any phase default React is provided fetch any library using for API calling. So here is using Apollo client. Apollo client means like as a calling your queries and mutation. Okay, you know idea about query and mutation. So before I explain the query and mutation, default what is a query and what is a mutation. So I hope कि you better understand query and mutation. सो एज तो ऐसे कि जैसे हमने ग्राफ क्यूएल के अंदर मल्टीपल हमारे एंड पॉइंट नहीं हो सकते. सो हेयर इज सिंगल एंड पॉइंट. ओके, डैश ग्राफ क्यूएल, या आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो बेटर, बट बाय डिफॉल्ट जो डैश ग्राफ क्यूएल होता है वही होता है. सो ये ग्राफ क्यूएल कॉल करने के लिए देखो मैंने कैसे किया है. फर्स्टली मैंने आई क्रिएट SRC inside folder, library inside, modulars inside, create folder Apollo client. So here is create Apollo client.ts file. So here import is firstly Apollo dash client. Okay, here is import is Apollo provider, Apollo client, in memory cache और form. Okay, error के लिए error, store के लिए store, set, और ये सबसे important नहीं है. create upload image. इससे पहले हम HTTP लिंक यूज कर रहे थे. सो HTTP लिंक इज ओनली क्वेरीज एंड म्यूटेशन कॉलिंग. सो आपको कोई लोकल से if you calling if you client to server any images upload or any file upload, then you recommended for create upload link. ओके, here मैंने कस्टम फेच एक फंक्शन बनाया. यहाँ से कुछ कोई भी हमारी क्वेरीज और म्यूटेशन कॉल होती है तो हमारे ये लोडर शो होता है. तो स्टोर के अंदर सेट लोडर और सेट लोडर फॉल्स कर दिया. उसके बाद मैंने हेडर पास ऐड किया है, जो हेडर मैंने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया है. सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यहाँ से एक्सेस टोकन ऐड किया और ये मैंने हेडर को पास कर दिया. Also this video I will explaining the authentication part, so carefully check. This video is for code operation, upload, and also the authentication, how to JWT tokens using like this. Okay, here is auto link here calling header links dot header, spread operator, and authentication. So after that create, sorry, upload link. Here is create upload link. Okay, create upload link is access to Apollo client, Apollo upload client. Okay, so it is passing URL and also fetch function, custom fetch. Okay, this one. Then also the any error occupied, like as a you not a query inside input type is incorrectly using, like as a, and also adding the some mistake for you creating a queries and mutation, then your alert here is shown immediately. Okay, or any side means query GraphQL side any error occupied, then immediately inside error is display. So here also export constant client new Apollo client. Here is passing link auth link dot concat. Auth link means like as a here created headers dot concat form error links means any error is generated, and also upload link. Upload link means your actually URL. This is local URL. Also the create live chain, and cache is passing the in memory cache. So export this one client is export, and also export to Apollo client. So this one is very too important. So to your main starting application .ts file. Okay, so firstly here two variables. First is Apollo provider and second is client. So like as हम जैसे कि Redux यूज करते थे, Redux के लिए provider यूज करते थे और प्रोवाइडेड के अंदर हमारा सारा कोड था. फिर बाद में हम कोई राउटर यूज करें तो राउटर के लिए भी हम उसके लिए मेन राउटर होता है और उसका अंदर राउट होता है और उसके अंदर स्विचेस होते हैं. सो सिमिलर आपको जब आप ग्राफ क्यूएल यूज करते हैं तो प्रोवाइडर रहेगा, उसके अंदर सारे आपके अंदर अंदर के कंपोनेंट उसके अंदर आ जाएंगे. अपोलो प्रोवाइडर. ओके, इंसाइड क्लाइंट पास किया मैंने, जो क्लाइंट यहाँ से एक्सपोर्ट किया, और ये हमारा फैब उसके अंदर रहेगा. कुछ हमको लोडर शो करना है, कुछ हमारा राउटर्स रहेंगे, कुछ हमारे ट्विस्ट मैसेज शो करने हैं, ये सब कुछ इसके अंदर रहेंगे. ओके,
सो लाइक दिस, तो ये आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे अपोलो क्लाइंट का कॉन्फ़िगरेशन किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार ये आपने कॉन्फ़िगरेशन किया सही से तो आपका आगे का इश्यू नहीं जनरेट हो जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमने कैसे क्वेरीज और म्यूटेशन कॉल किए और हमने कैसे कॉन्फ़िगरेशन किए। सो फीचर के अंदर हम जाते हैं, जिससे कि मैंने आपको आउटपुट में लाइब्रेरी दिखाया था। सो आई हियर इज डिस्क्रिप्शन इज लाइब्रेरी। सो हम इसके अंदर फर्स्टली हम आते हैं सर्विस के अंदर। सर्विस के अंदर मैंने कॉल किए हैं म्यूटेशन। ओके, म्यूटेशन यहाँ पर जो ये हम यूज करने वाले हैं, म्यूटेशन यूज करने वाले हमारे, हमको कुछ क्लाइंट से सर्वर को कुछ डेटा पास करना है और फिर बाद में रिस्पॉन्स लेना है। सो क्वेरीज और म्यूटेशन आपको पता है कि क्वेरी मतलब आपको सर्वर से कुछ ना कुछ डेटा, वन वे डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है क्वेरीज। म्यूटेशन मतलब टू वे डायरेक्शनल, मतलब आप जैसे कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डेटा पास करके सर्वर से कुछ डेटा लेते हो। जैसे कि मुझे सर्वर से लिस्ट लेनी है, लैब लिस्ट, तो लैब लिस्ट के लिए मुझे कुछ क्लाइंट से डेटा पास करना है। सो मैंने इनपुट करके एक लैब इनपुट, जो लैब इनपुट रहेगा हमारे ग्राफ क्यूएल के रेस्ट इनपुट के अंदर हमने एक टाइप्स इनपुट टाइप्स डिफाइन किए होंगे। ये हमारा लैब इनपुट रहेगा और यहाँ से हमने नोटेशन के अंदर पूरा डेटा कर दिया। सो लैब जो हमारा ये म्यूटेशन का नाम रहेगा हमारे नोड जीएस के ऊपर जो नेस्ट के अंदर उसका, और ये उसके फिर बाद में हमको क्या क्या रिस्पॉन्स में मिलने वाला है, पेज इनिशियल मिलना है, सक्सेस मिलने वाला है, मैसेज और डेटा मिलने वाला है। फिर रेमो के लिए, रेमो टैब के लिए हमने ये अनदर म्यूटेशन कॉल किया, फिर बाद में उसको इनपुट का उसका टाइप दिया remove। ये तो डिफाइन यहाँ पर नहीं है, फिर बाद में आप कहेंगे कि ये डिफाइन हमने यहाँ पर नहीं, ये हमारे सर्वर साइड डिफाइन देगा उसकी टाइप इनपुट टाइप। सो यहाँ से आपको डिफाइन नहीं करना, डायरेक्टली आप उसको जो उसका जो टाइप है वो ऐड करके उसको डिफाइन करके आप भेज सकते हो। ओके, याद रखना कि ये आपको यहाँ पर कोई है आपके प्रोजेक्ट के अंदर पूरा नहीं मिल जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर सिमिलर जो सर्वर पर है वही आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये रेमो का हो गया, क्रिएट का हो गया, फिर बाद में अपलोड का हो गया, और इमेज अपलोड का हो गया, और एग्जिस्टिंग चेक रिकॉर्ड का। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये सारे इम्पोर्टेंट है कर्ड ऑपरेशन के लिए। तो ये कर्ड ऑपरेशन के लिए हमने सारे म्यूटेशन क्रिएट किए। ओके, ये जेक्यूएल से, अगेन अपोलो क्लाइंट ये जेक्यूएल प्रोवाइड करता है क्वेरी लैंग्वेजेस। सो फिर बाद में हमने सर्विस के अंदर क्या किया है, यहाँ पर भी सेम यूज किए है हमने। देखो, आप कभी भी अपोलो क्लाइंट जो है दो वे से यूज कर सकते हैं। एक तो मैंने विदाउट हुक्स यूज किया है, अदरवाइज हुक्स यूज किया है। आप ये हुक्स यूज करके भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब दोनों में से डिफरेंस क्या है, मान लीजिए कि आपको यूज हुक्स के अंदर करना हो तो आपको एक्चुअली स्क्रीन के अंदर करना पड़ेगा। ये हमारी स्क्रीन है एक्चुअली, ओके, लैब। तो इसके अंदर कोई आपको क्वेरी लिखना है, ये सब कुछ करना है। जैसे कि मैंने अभी म्यूटेशन अंदर क्वेरी लिखा, और कॉल कहाँ से कर रहा हूँ मैं, अनदर सर्विस कॉल्स, अनदर से कॉल कर रहा हूँ क्लाइंट यूज करके। बट मुझे यूज हुक्स करना हो तो यहाँ पर यूज क्वेरी और यूज म्यूटेशन करना पड़ेगा। बट उससे क्या हो जाएगा, हमारा इस कंपोनेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा कोड होता है, उसके डिजाइन होते हैं, उसकी फंक्शनलिटी होती है। सो उसका सो कंपोनेंट की कोड की लेंथ बहुत सारी बढ़ जाएगी। सो हमने क्या किया है कि क्लाइंट क्वेरी और म्यूटेशन सर्विस से कॉल किया है विदाउट यूज हुक्स। सो कैसे कॉल करना है, सो आपको यहाँ पर फर्स्टली हमने तो ये इंपोर्ट किया, जहाँ पर हमने एड डॉट टी एस के अंदर इंपोर्ट किया था सिमिलर। क्लाइंट सिर्फ इंपोर्ट किया, अपोलो सर्वर्स प्रोवाइडर नहीं यूज किया, इंपोर्ट किया। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, लिस्ट लेनी है, कुछ मैंने डेटा लिया स्टार्टिंग लिया यहाँ पर। अब देखो ये क्लाइंट डॉट म्यूट डॉट म्यूटेशन, ओके, इसके अंदर ऐसे कॉल करना पड़ेगा आपको, विदाउट हुक्स कॉल करना तो ऐसे कॉल करना पड़ेगा। अब आपको क्वेरीज कॉल करनी है तो क्वेरी कैसे कॉल करेंगे आप, कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर क्वेरी है। ओके, तो ये रहेंगे क्वेरी, और इसके अंदर जो रहेगा फिर बाद में, सॉरी, या इसके अंदर क्या रहेगा फिर बाद में, ये देखो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और उस क्वेरी का नाम लाइक एज लिस्ट, ये क्वेरी होगी तो।
और इससे कॉल कर सकते हैं, बट अभी सारी मेरी म्यूटेशन ही है, सो म्यूटेशन कॉल करने के लिए और उसको वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब उसको डेटा पास करना है। डेटा क्या पास करना है? ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट के अंदर अगेन इनपुट का ऑब्जेक्ट रहेगा पेज लिमिट, ये हमारे इनपुट्स रहेंगे जो हमने यहाँ पर म्यूटेशन के अंदर डिफाइन कर दिए। ये देखो लैब इनपुट के अंदर जो जो क्या क्या वेरिएबल्स है ये है, सॉरी इसके अंदर पेज लिमिट, एनवायरनमेंट, रो और लैब, ये हमारे रह गए हैं वेरिएबल्स मतलब इनपुट रहेंगे। सिमिलर ये हमारा हुआ लिस्ट के लिए, ऐड के लिए अगेन सेम बिट, ये म्यूटेशन, ये देखो लिस्ट, लैब लिस्ट, लैब्स लिस्ट कॉल हो रहा है यहाँ पर, क्रिएट लैब, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमने म्यूटेशन के अंदर डिफाइन किए, यहाँ पर म्यूटेशन इंपोर्ट किए और इसके अंदर जो जो हमने म्यूटेशन क्रिएट किए यहाँ पर इंपोर्ट किए और वो असन किए। ऐड के लिए ऐड, वेरिएबल्स हमारे स्क्रीन से वेरिएबल्स हमारे स्क्रीन से अंदर से आने वाले डायनेमिकली। फिर वहाँ हमारा चेक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, फिर बाद में डिलीट करने के लिए डिलीट रिमूव लैब्स मैंने म्यूटेशन को पास कर दी। अपडेट के लिए अपडेट लैब्स वेरिएबल्स मैंने डायनेमिकली पास कर दिया है। इमेज अपलोड के लिए यहाँ पर देखो वेरिएबल्स डायनेमिकली पास किए और म्यूटेशन के अंदर इमेज लैब, यहाँ पर देखो हम जो नॉर्मल एपीआई से मतलब रेस्ट एपीआई से कॉल करते हैं इमेज अपलोड करने के लिए, तो वहां पर हमको फॉर्म डेटा यूज करना पड़ता है, बट लाइक हियर इज नॉट रिकॉर्ड फॉर फॉर्म डेटा। डायरेक्टली आप उसका म्यूटेशन को लिख के आप डायरेक्टली उसकी इमेज अपलोड कर सकते हो। सो बट क्लाइंट साइड नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट सर्वर साइड इज इमेज अपलोडिंग के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू कि हम सर्वर साइड भी कैसे मैनेज करेंगे। सो फर्स्टली हम डिस्कस की क्लाइंट साइड का, बाद में हम सर्वर साइड पर जाते हैं। आपको ये समझ में आया? ओके, तो हमने ये सर्विस क्रिएट की है, म्यूटेशन क्रिएट की है। अब ये सर्विस हमारी स्क्रीन से कैसे कॉल होती है? ये हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन के अंदर फर्स्टली हम आते हैं, ये देखो ऑन सबमिट टैब। ओके, ऑन सबमिट टैब पर मैंने यहाँ से कॉल किया है ऐड लैब। ये ऐड लैब, ऐड सर्विस, लैब सर्विस से लैब सर्विस कॉल हो रही है। लैब सर्विस के अंदर जैसे हमने देखा कि लैब, यहाँ पर हमने सर्विस के अंदर ये एक सर्विस क्रिएट की है और ये हमारा एक्सपोर्ट क्लास रहेगा लैब सर्विस। ये लैब सर्विस एक स्टोर के अंदर, यहाँ पर हमने मोबाइल्स इंप्लीमेंट किया है। मोबाइल्स के अंदर यहाँ पर जाता है, वहां से एक्सपोर्ट होता है और ये स्क्रीन के अंदर हम यहाँ पर लैब स्टोर डॉट लैब सर्विस डॉट एड सर्विस, तो ये आप मोबोएक्स का आपका पता होगा तो बेटर, बट नहीं है तो दैट्स इट। एक कंसिडर कीजिए कि मैंने सर्विस एक क्लास क्रिएट किया है, उसके अंदर कुछ मैंने एक फंक्शन क्रिएट किए हैं जैसे कि ऐड लैब, और यहाँ से मैं डायरेक्टली ऐड लैब कॉल कर रहा हूँ, दैट्स इट। ओके, तो उसके अंदर देखो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट पास किया है क्योंकि हमने इसके अंदर वेरिएबल्स एनी डिफाइन कर दिए हैं। ओके, तो उसके अंदर इनपुट पास कर रहा हूँ, इनपुट के अंदर ऑब्जेक्ट स्प्रेड ऑफ हमारा पूरा डेटा मतलब उसका लैब का नाम, कोड, ये सब कुछ रहेगा जो हमने सर्वर साइड पर उसका जो एंटिटी का जो हमने उसके बनाए है, उसके फील्ड बनाए हैं, ये फील्ड हम यहाँ से पास करेंगे। अब देखो जो अपने सर्वर जितने फील्ड बनाए उतने ही आप फील्ड यहाँ से पास कर सकते हो। मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा भी फील्ड पास की तो आपका वो एक्शन हो जाएगी, अपोलो क्लाइंट प्रॉपरली कॉल नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको एरर शो हो जाएगा कि दिस फील्ड इज रिकॉर्ड, दिस फील्ड नॉट यू पासिंग, या आपने एक्स्ट्रा पास किया तो डायरेक्टली कहेगा कि ये फील्ड अपने एक्स्ट्रा पास किए बट आपने उसके अंदर जो आपकी स्कीमाज है और आपके जो ऑब्जेक्ट टाइप है डिफाइन नहीं किया। सो याद रखना कि देखो हमारा जो ये था रेस्ट एपीआई के अंदर, रेस्ट एपीआई के अंदर हम मल्टीपल पास भी कर सकते थे, ये सब कुछ वहां पर इतना लिमिटेशन नहीं था, बट इसके अंदर ग्राफक्यूएल के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि स्कीमा के अंदर जितने आपने डिफाइन उतने ही ले सकते हो और उतने ही पास कर सकते हो। यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता, वो इजीली फ्लो होता है। सो मैंने इससे पहले भी आप केवल एक्सप्लेन किया है कि ग्राफक्यूएल के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेजेस है, वो भी आप देख लेना प्रीवियस ग्राफक्यूएल की ग्राफक्यूएल प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो हियर इज इफ गेटिंग अ सक्सेस देन शोइंग द मैसेज। ओके, जो ट्विस्ट मैसेज है वो शो कर दिया, फिर बाद में ये हुआ।
सिमिलर ये हुआ हमारा ऐड के लिए। अब हम आते हैं इमेज के लिए, भी वही है ऐड के लिए। फिर बाद में हम आते हैं डिलीट के लिए, सिमिलर। फिर बाद में लैब सर्विस डिलीट लैब, यहाँ से मैंने इनपुट के अंदर सिर्फ आईडी पास कर दिया है। फिर बाद में अपलोड के अंदर हम आते हैं, अपलोड के लिए सिमिलर अपलोड सिंगल सिंगल फील्ड, इसके अंदर इनपुट लैब और हमने डायनेमिकली उसके कीज और वैल्यू पास किए। अब आते हैं इमेज अपलोड के लिए। इमेज अपलोड के लिए मैंने क्या किया है, लैब सर्विस अपलोड लैब इमेज, इनपुट के अंदर मैंने उसका आईडी, कौन सी आईडी का इमेज अपलोड करना है। सो डायनेमिकली यहाँ से मैंने क्लाइंट से आईडी पास किया है। ऑल्सो लैब लोगो, लैब लोगो मतलब हमारे एक फाइल का एक की रहेगी, और उसके अंदर हमने पूरी ये जो वैल्यू है, वैल्यू इज ऑब्जेक्ट है ना कि ओनली पाथ। उसका देखो ये हमने कैसे डिफाइन किया है, ये भी देखा था मैं। जो हमारी it's main connection read, that's yes so यस लैब लोगो। सो देखो ये लैब लोगो हमारा फाइल इनपुट है। फाइल इनपुट के अंदर मतलब आपको फाइल इनपुट आपको समझ में आएगा। सो यहाँ से ऑन चेंज पर मैंने क्या किया है, लैब लोगो ई डॉट टारगेट डॉट फाइल शो, यहाँ से मतलब आपने इन कंसिडर क्लाइंट ने मल्टीपल सिलेक्ट किए फाइल, फाइल के अंदर मल्टीपल आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सो इसके लिए मैंने कस्टम कंपोनेंट क्रिएट किया है और वो यहाँ से यूज कर रहा हूँ। पर जो सिलेक्ट किए जो उसकी फाइल जीरो फाइल्स ऑफ इंडेक्स जीरो नंबर की मैं फाइल रीड कर रहा हूँ लैब लोगो, और यहाँ से मैं मोबाइल्स का ऑब्जर्वेबल अपडेट कर रहा हूँ। सो हमको कभी भी रीड करना है लैब लोगो तो इसके अंदर हमको इमेज का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ना कि ओनली पाथ मिल जाएगा। सो ये है ध्यान में। और यहाँ पर जो लोगो आ रहा है लैब लोगो वही है हमारा इमेज का ऑब्जेक्ट आ रहा है। और हमने अब हाँ, ये जो अपडेट इमेज अपडेट लैब इमेजेस है इसको हमने पास किया है म्यूटेशन, और म्यूटेशन सिमिलर एज हमने इसके अंदर म्यूटेशन फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया। ओके, सो आई होप कि मैंने क्लाइंट साइड का पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। सो बेटर वे से फर्स्टली मैं बताता हूँ आपको, हमने अपोलो क्लाइंट कैसे फाइल के क्रिएट की और एक्सप्लेन किया। ऐप डॉट टी एस के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे मॉड प्रोवाइडर ऊपर सबसे ऊपर पैरेंट ऐड किया और उसके अंदर हमारे सारे क्लाइंट राउटर से सब कुछ ऐड किया। फिर बाद में म्यूटेशन हमने कैसे क्रिएट किया। म्यूटेशन हमारे मल्टीपल है, ऐड है, डिलीट है, इमेज अपलोड है, अपलोडिंग है डेटा। फिर बाद में हमने सर्विस क्रिएट की, सर्विस कैसे कॉल की, और विदाउट हुक्स हमने कैसे म्यूटेशन और क्वेरी कैसे कॉल की। क्वेरी अभी यहाँ पर नहीं यूज की, बट क्वेरी का मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेरी कॉल करनी है, सिमिलर करनी है। सो ओके, डॉट डी एन के अंदर रिस्पॉन्स वहां पर भी सेम रहेगा क्वेरीज के अंदर। ओके, और कैची के अंदर आप कैची का इधर शो कर सकते हो। और हमने ये भी देखा कि स्क्रीन से कैसे हमने सर्विस कॉल किया और वो डेटा डायनेमिकली कैसे शो गया। कभी अभी यहाँ पर हमेशा याद रखना कि इनपुट हमेशा मैंने पास किया है। सो इनपुट हमने क्यों पास किया है तो ये देख लेना, न्यूट्रिशन के अंदर हर के लिए मैंने इनपुट यूज किया है, ये देखो। सो ये हमारा इनपुट अंदर इस इनपुट ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो सर्वर साइड जो अपोलो क्लाइंट यूज किया है वहां पर भी इनपुट डिफाइन किया है। जो डेटा आने वाला है क्लाइंट से वो इनपुट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। ओके, आई होप कि क्लाइंट साइड आपको पूरा अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे इमेज अपलोड करना है, कैसे क्लाउड ऑपरेशन और स्क्रीन से सर्विस कैसे कॉल करनी है। तो ये बेस्ट है एक्चुअली अप्रोच, और स्ट्रक्चर भी मुझे एज अ गुड लगता है। सो यही मैं स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ। सो अब हम जाते हैं हमारे बैक एंड साइड। ओके, back end side is very important क्योंकि back end I like back end side. Okay, so also I like front end but front end से ज़्यादा मैं back end को प्रेफर करता हूँ। सो ये हमारा फर्स्टली आपको ये मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि बेसिक का नेस्ट जेएस का कैसे यूज होता है, क्या है नेस्ट जेएस। इस फ्रेमवर्क का है। ओके, सो जो हमने नोड के अंदर एक्सप्रेस यूज करते थे तो इसका ही सुपरसेट और कुछ
उन्होंने नेस्ट के अंदर कुछ फंक्शनलिटी डाली है, कुछ उसने लाइब्रेरी कुछ कोड स्ट्रक्चर वाइज किया है, कंट्रोलर, फिर बाद में मॉडलर्स है, सर्विसेज है। ऐसे आप मल्टीपल वे से आप नेस्ट जीएस यूज कर सकते हो। सो आपका कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट बन गया तो आप इजीली मैनेजमेंट कर सकते हो यूजिंग नेस्ट जेएस से। सो इससे पहले नोड जेएस के अंदर हमको सारे क्रिएट करना पड़ता था, राउटर से सब कुछ, बट यहाँ पर बहुत सारे इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो नेस्ट जेएस है एज कम्पेयर टू एंगुलर का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में चलता है नेस्ट जेएस। तो उसका भी थोड़े से साइड उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेना। उसकी सीएलआई प्रोवाइड करता है नेस्ट.js, कुछ उसके कस्टम कमांड लाइन है। जैसे कि आप कुछ को एट ए टाइम मॉड्यूलर सर्विस और रिजॉल्वर क्रिएट करने हो, सो आप डायरेक्टली एट ए टाइम वो एक कमांड लाइन से ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट कर सकते हो। सो बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप देख लेना स्टेप बाय स्टेप। सो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी जो कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया है बैकएंड से। सो ये हमारा मेन डॉट टी एस, जैसे कि ऐप डॉट टी एस एक्स हमारी मेन फाइल थी क्लाइंट साइड, वैसे यहाँ पर मेन डॉट टी एस ये हमारी सर्वर साइड मेन फाइल रहेगी। तो यहाँ पर हमने कोर के अंदर ने फैक्ट्री ऐप मॉड्यूल्स, फिर बाद में हमने, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इमेज अपलोड के लिए ये ग्राफक्यूएल अपलोड एक्सप्रेस हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किए। फिर बाद में हमने नेक्स्ट फैक्ट्री डॉट क्रिएट के अंदर ऐप मॉडल मतलब ये जो हमारा ऐप मॉडल है हमने इंपोर्ट करके इसको पास कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर ऐप डॉट यूज ग्राफक्यूएल अपलोड एक्सप्रेस, उसके साइज की क्या लिमिट होनी चाहिए और मैक्स साइज आप एट ए टाइम कितने अपलोड कर सकते हो, और उसको मैंने एक पोर्ट असाइन कर दिया। ओके। और ये मैंने फंक्शन कॉल किया, तो ये फंक्शन कॉल करने के बाद सर्वर आसान हो जाएगा, मिडलवेयर आसान हो जाएगा, फाइल का ये ग्राफिकल अपलोड एक्सप्रेशन ये कॉल हो जाएगा, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने ये डिफाइन नहीं किया तो आपकी इमेजेस से अपलोड नहीं हो जाएगी। ओके। सो नेक्स्ट हमारे मेन फाइल होता है ऐप डॉट मॉडल। ओके, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर हमारे सारे मॉडल रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे डेटाबेस रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे टाइप स्क्रिप्ट के जो टाइप स्क्रिप्ट का जो मेन होता है मॉडल वो यहाँ पर ही डिफाइन होता है। सो फर्स्टली देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मॉडल हो गया। फिर बाद में ग्राफक्यूएल मॉडल, कॉन्फ़िग मॉडल, मोंगोज मॉडल, क्योंकि हम बैकएंड में हम मोंगोडीबी यूज करने वाले हैं, सो मोंगोज यहाँ पर डिफाइन हुआ। और जॉइन, और ये अपलोड के लिए हमने एक स्केलर, मतलब मान लीजिए कि आपको कोई भी टाइप आपको एक्स्ट्रा यूज करना है ग्राफक्यूएल के साइड, जैसे कि ग्राफक्यूएल डेट टाइमर प्रोवाइड नहीं कर सकता, मतलब करता नहीं, सो उसको आपको यूज करना हो तो आपको उसको स्केलर और उसको डिफाइन करना पड़ेगा, और वो स्केलर आप यूज कर सकते हो। सो सिमिलर अपलोड का भी मैंने एक स्केलर क्रिएट किया है और स्केलर हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन ऐप मॉडल, उसके बाद हम स्केलर के ऊपर जाते हैं, अपलोड के ऊपर। ओके। सो ये हुआ हमारा, सारे डिफाइन हो गए, और ये सारे हमारे मॉडल्स हो गए, मतलब फीचर हो गए एक तरीके से। जैसे कि यूजर हो गया, बैनर हो गया, लैब हो गया, ये सब कुछ हमारे मॉडल्स हो गए। मॉडल्स मतलब इसके अंदर हमारे सर्विसेज रहेंगे, रिजॉल्वर्स रहेंगे, मॉडल्स रहेंगे, एंटिटीज रहेंगे, फिर बाद में इनपुट एंटिटी, आउटपुट सॉरी रिस्पॉन्स एंटिटी रहेगी, फिर बाद में अपडेट की इनपुट, ये सारे इसके अंदर रहेंगे। सो यहाँ से एट मॉडल इसके अंदर इंपोर्ट के अंदर सारे रहेंगे। फर्स्टली कॉन्फिग मॉडल डॉट, इसके अंदर इस ग्लोबल अब आपकी डॉट env फाइल है, यहाँ पर आप इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्ट के अंदर प्रोसेस डॉट env डॉट आ रहा है, उसका उसकी की आप यूज कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर आप उसको डिफाइन करते हैं मोंगो मॉडल डॉट फॉर रूट, इसके अंदर आप यूआरएल यूज कर सकते हैं। ये मेरा अभी टेम्पररी यूआरएल है, सो आप इसे यूआरएल ऐड कर सकते हो। फिर बाद में ग्राफ क्यूएल मॉडल रूट आप पर उसके एक फाइल, क्योंकि ये से डॉट ग्राफ क्यूएल डॉट जेक्यूएल है, ये क्या है कि ये ऑटोमेटिक जनरेट होती है। मतलब ये जो हम कोड यूज करने वाले हैं ये कोड फर्स्ट रह जाएगी, हमारा हमको कोई अगेन अगेन उसकी स्कीमा
फिर बाद में उसकी ग्राफ क्यूएल क्रिएट करने की नहीं, यहाँ पर हमने कोड सारा ये कोड फर्स्ट के अंदर कोड करेंगे और उससे फाइल हो जाएगी ग्राफ क्यूएल स्कीमा जेक्यूएल। और ये हमने कुछ सारे यहाँ पर हमारे मॉडल्स इंपोर्ट किए हैं। ऑल्सो प्रोवाइडर के अंदर हमने जो स्केलर यूज अपलोड ये प्रोवाइडर के अंदर ऐड किया और एक्सपोर्ट क्लास कर दिया। ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको ऑटो स्कीमा फाइल ऐड करनी है। सो ऑटो स्कीमा क्या फाइल होती है, ये जो इसके अंदर जितने हमारे मॉडल्स है, इसके अंदर जितने हमारे एंटिटीज है, लाइक एज हमारे ऑब्जेक्ट एंटिटी हो गई, ऑब्जेक्ट टाइप हो गया, इनपुट टाइप हो गया, जितने फीचर ये सारे इसके सबकी वो एक ग्राफ क्यूएल की फाइल क्रिएट करेगा। सो ऑल्सो शो जेक्यूएल फाइल। देखो ग्राफ, जैसे कि हमारा आपको ग्राफ क्यूएल के अंदर मोस्टली क्या क्या टाइप होते हैं आपको पता होना चाहिए। टाइप होता है, इनपुट टाइप होता है, क्वेरी म्यूटेशन होता है, ये सारे हमारे टाइप होते हैं। अब टाइप क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर दिस फाइल इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, डू नॉट मॉडिफाई। सो ये हमने क्रिएट नहीं की, बट ये किसने क्रिएट की, ऑटोमेटिकली नेटबीएस और ग्राफ क्यूएल ने और टाइप वार्म ने मिलकर फाइल क्रिएट की। सो आईडी ये सब कुछ ये हमने कोड फर्स्ट इसके अंदर डिफाइन किया है। सो मैं वो भी कोड दिखाऊंगा कि इसे हमने वहां पर डिफाइन किया है। और ये ऑटोमेटिकली उसने फाइल क्रिएट की है, उसके यूजर के टाइप्स डिफाइन किए, लॉगिन एक्टिविटी के टाइप, रिक्वेस्ट टोकन, लॉगिन रिस्पॉन्स, ये सारे टाइप्स डिफाइन हो गए। अब ये देखो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन है ये मैंने कुछ यहाँ पर कुछ क्रिएट किया नहीं, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है। सारे क्वेरीज भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं। फिर बाद में इनपुट्स, ये इनपुट्स हो गए, ये इनपुट सारे उसने डिफाइन कर दिए, जितने जितने इनपुट्स थे वो सारे उसने डिफाइन कर दिए। ओके, ये देखो सो फर्स्टली हमको देखना है लैब का। सो ये हुआ हमारा लैब का। ओके, अब देखो लैब के अंदर ये जो लैब लोगो रहेगा, सो आई विल शो आल्सो, या इमेज हमारा स्ट्रिंग रहेगा और लैब लोगो क्या है हमारा इनपुट टाइप। सो इनपुट टाइप यहाँ पर वो नहीं आ जाएगा क्योंकि हमको वो डेटाबेस के अंदर ये जो सारा है ये हमारा डेटाबेस रिलेटेड, जो हमारा डेटाबेस के अंदर जो जो क्वेरी रहेगी वो रहेगी। लैब लोगो जो रहेगा वो रहेगा हमारा इनपुट के अंदर। सो हम लैब के अंदर जो हमारा ये है इनपुट, ये देखो सारा या लैब इनपुट। तो लैब इनपुट के अंदर ये देखो क्रिएट लैब इनपुट। ओके, सो इसके अंदर ये इनपुट है, या लैब लोगो उसका टाइप क्या रहेगा, अपलोड। अपलोड क्या है, हमने स्कीमा क्रिएट की है, बट टाइप के अंदर आपने देखा होगा कि लैब लोगो नहीं है। सो ये डेटाबेस की एक स्कीमा है और ये हमारा क्रिएट अपलोड का एक स्कीमा है। सो आप हमेशा याद रखना कि क्रिएट जो आप डेटा अपलोड करते हैं उसके अलग क्रिएट कर सकते हो और डेटाबेस के अलग क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल। सो हमेशा याद रखना कि फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होती है जो हमने मॉड्यूल डॉट कॉन्फिग के अंदर डिफाइन किए हैं। सो उसके बाद हम मेन पॉइंट पर आते हैं, हमारे मॉड्यूलर्स। यहाँ पर भी सेम एसआरसी के अंदर मॉड्यूलर्स और इसके अंदर लैब के अंदर जाते हैं। सो मैं फर्स्टली आपको बताता हूँ कि ये फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। सो देखो मैंने नेस्ट जेएस मेरे जो मेरी सिस्टम है इसके अंदर CLI इंपोर्ट किया है। सो हमेशा याद रखना कि उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, या डॉक्यूमेंटेशन nestjs.com, तो यहाँ पर आपको पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि आपको कैसे ग्लोबली ये इंस्टॉल करना है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करना है, और यहाँ पर सारे उसके CLIs है। तो आप उसके CLI भी क्रिएट यूज करके आप यूज कर सकते हो। सो अभी देखो मुझे एक स्टैटिकली एक मैं आपको दिखाने के लिए क्रिएट करता हूँ। सो जो जैसे कि नेक्स्ट जनरेटर रिसोर्स किसके अंदर करना है। सो SRC तो मेन फोल्डर रहेगा हमारा। जैसे कि मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर मुझे क्या करना है, टेस्ट। अब डैश डैश नो स्पेक, स्पेक फाइल यूज क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली, बट आपको स्पेक फाइल यूज रिकमेंडेड नहीं है। सो आप जैसे हिट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगी। सो देखो आपको किस वे से क्रिएट करना है, रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है,
ग्राफ क्यूएल कोड फर्स्ट करना है, ग्राफ क्यूएल स्कीमास फर्स्ट, माइक्रो सर्विस क्रिएट करनी या वेब सॉकेट। वेब सॉकेट मतलब जैसे कि हम ग्राफ क्यूएल के अंदर अगेन मैं एक अनदर एक वीडियो क्रिएट करूंगा कि यहाँ पर आती है सब्सक्रिप्शन पार्ट आता है। सो सब्सक्रिप्शन कम्युनिकेशन करता है वेब सॉकेट से, वो बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट राइट नाउ नो। सो ऑल्सो जैसे कि हमने स्कीमा फर्स्ट में यूज किया, सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ग्राफ क्यूएल के कोड फर्स्ट मेथड से हम यूज करेंगे। सो जैसे मैंने कोड फर्स्ट यूज किया तो यहाँ पर कहेगा कि उसको कोड ऑपरेशन एंटिटी करने का, जैसे कि एडिट डिलीट अपडेट, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। सो मैं एस कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, अब यहाँ पर देखो उसने मॉड्यूल्स के अंदर एक टेस्ट फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर डीटीओ एंटिटीज और एंटिटीज के अंदर टेस्ट डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, टेस्ट डॉट रिजॉल्वर डॉट टीएस, सर्विस, ये सारे उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किए। ऑल्सो ऐप डॉट मॉड्यूल जो है इसके अंदर वो इंपोर्ट भी कर दिया उसने, और उसके अंदर ये भी कर दिया, इनपुट के अंदर भी डाल दिया। सो ये जो टास्क है ये सब कुछ इसने कर दिया। सो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको ये मैंने आपको दिखाने के लिए क्रिएट किया था। सो देखो मैं ये बताता हूँ एंट्रीज के अंदर क्या क्या रहेगा। एंटिटीज के अंदर आपके जो मोंगोडीबीज के अंदर जो डेटा है वो रहेगा। ओके, डीटीओ, डीटीओ मतलब क्लाइंट से आपको क्या क्या डेटा आने वाला है, जैसे कि क्रिएट, ये देखो यहाँ पर है ऑब्जेक्ट टाइप, मतलब आपका एक स्कीमा के अंदर क्या डेटा है। और ये देखो यहाँ पर हमारा इनपुट टाइप, मतलब हमको क्लाइंट से क्या लेना है, मतलब क्लाइंट से कौन सी इनपुट लेना है। सो सारे यहाँ पर आप इनपुट डिफाइन कर सकते हैं। अपडेट के लिए पार्शियल टाइप इनपुट लिया है, और यहाँ पर आप अपडेट के लिए फील्ड डिफाइन कर सकते हो। वैसे आप मल्टीपल, आपको जो रिक्वायरमेंट है एज आप फाइल क्रिएट करके आप यूज कर सकते हो। मॉडल्स के अंदर सबसे होता है मॉडल आप क्या क्या है, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, मॉडल एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो। रिजॉल्वर के अंदर हमारी क्वेरीज और म्यूटेशन रहती है, कितनी क्वेरीज और कितनी म्यूटेशन। देखो फर्स्टली म्यूटेशन क्रिएट हुआ, क्रिएट टेस्ट, फिर बाद में हो गया टेस्ट, उसका नाम रहेगा टेस्ट, बट उसके अंदर का फाइल फंक्शन का नेम रहेगा फाइंड ऑल, बट फाइंड ऑल नॉट इज अ म्यूटेशन, उसका सॉरी नॉट इज अ क्वेरी, क्वेरी का नाम हमारा टेस्ट रहेगा। सिमिलर टेस्ट सिंगल के लिए सिंगल आर्गुमेंट, म्यूटेशन के लिए अपलोड, अपलोड सॉरी अपडेट के लिए अपडेट यूज किया, रिजॉल्व के लिए रिजॉल्व यूज किया। सो ये मैं अगर रिमूव करता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको लैब एक्सप्लेन करूंगा। सो हम जाते हैं लैब के अंदर। अब देखो लैब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर मैंने प्रॉप स्कीमा और स्कीमा फैक्ट्री ये मोंगोज के अंदर आ रहा है। ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ फील्ड ये ग्राफ क्यूएल से आ रहा है, टाइप ओआरएम से एंटिटी, और कॉलम कॉलम, और ये डॉक्यूमेंट जो रहेगा ये हमारा आ जाएगा मोंगोज से। सो ये आपको इतना तो आपको समझ में आया। सो यहाँ पर देखो फर्स्टली ये जो क्लास है, इस क्लास का क्या क्या ये होना चाहिए। फर्स्टली ऑब्जेक्ट टाइप होना चाहिए, स्कीमा, क्योंकि हम एक मोंगोडीबी की स्कीमा कर रहे हैं, और उसके बाद हम एंटिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एंटिटी टाइप ओआरएम पास प्रोवाइड करता है, स्कीमा हमारा मोंगोज पास करता है, और ऑब्जेक्ट टाइप इज ग्राफ क्यूएल, तो ग्राफ क्यूएल ये होगा। एक्सपोर्ट क्लास लैब, फिर बाद में हमारी एक आईडी रहेंगे, उसके अंदर कोड रहेगी, नेम रहेगा, कंट्री रहेगा, ये सारे हमारे उसके ऑब्जेक्ट टाइप ये सारे क्रिएट हो जाएंगे हमारे एक मंगोज डीबी के अंदर। ओके, फिर बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप लैब डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू लैब एंड डॉक्यूमेंट। ओके, फिर बाद में एक्सपोर्ट, यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और यहाँ पर हमने स्कीमा पास किया। एक्सपोर्ट कांस्टेंट लैब स्कीमा इज इक्वल टू स्कीमा फैक्ट्री डॉट क्रिएट फॉर क्लास, उसको लैब आसान किया जो हमने ये क्लास क्रिएट किया। ये हमेशा याद रखना कि आप जब मोंगोडीबी यूज करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट और स्कीमा क्रिएट करना कंपलसरी है। ओके, सो उसके बाद हम जाते हैं लैब डॉट मॉडल के अंदर। सो फर्स्ट यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया जो हमने स्कीमा क्रिएट की थी। सो यहाँ पर मंगोज मॉडल डॉट फॉर फीचर, इसके अंदर हमारा ये जो है उसका नाम लैब डॉट नेम, ये हमारा मोंगोडीबी का कलेक्शन का नाम रहेगा, जैसे कि मैंने लैब डॉट नेम लिखा है। सो मैं यहाँ पर और अलग पास कर सकता हूँ कि जैसे टेस्ट कलेक्शन। ओके,
ये हमारा टेस्ट कलेक्शन, ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया हमारा मोंगोडीबी का कलेक्शन का नाम, और स्कीमा मैंने पास की, जो हमने स्कीमा यहाँ पर एंटिटीज के अंदर, ये देखो यहाँ पर इंपोर्ट कर दी थी। सो ये मैं अंडो कर देता हूँ, ओके। और उसके अंदर मैंने क्या किया, प्रोवाइडर, लैब सर्विस और रिजॉल्वर, और यहाँ पर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक लैब एक मॉडल है, बैनर एक मॉडल है, ओके। बैनर के अंदर मुझे लैब का डेटा, लैब की एक सर्विस के अंदर कोई सर्विस रीड करनी है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली लैब सर्विस एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और लैब के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा लैब सर्विस। उसके बाद मैं फीचर यूज कर सकता हूँ लैब सर्विस की, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। तो ये आपको समझ में आया है कि हमने कैसे ये क्रिएट किया। उसके बाद हम जाते हैं हमारे रिजॉल्वर के अंदर। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सॉरी, एंटिटीज के अंदर हम जाते हैं। फर्स्टली यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे डीटीओ के अंदर फर्स्टली हमने क्रिएट लैब के अंदर अगेन हमने ये डिफाइन किया। अब नलेबल मतलब कभी कभी इनपुट से ये नलेबल एम्प्टी भी आ सकती है। सो मैंने उसको नलेबल फील्ड एम्प्टी कर दिए, ये सारे कर दिए। क्रिएट के लिए ये सारे मैंने यूज की। फिर बाद में लैब इनपुट के लिए देखो यहाँ पर इनपुट टाइप है। सो ये इनपुट टाइप रहेगा हमारा पेज, लिमिट, एनवायरमेंट, रो, लैब कोड। और ये डिलीट के लिए ये मैंने सिर्फ आईडी यूज किया है, क्योंकि हमने फ्रंट एंड से क्या किया था, इनपुट के अंदर आईडी के अंदर एरे ऑफ पास किया। सो ये यहाँ पर मैंने सारे टाइप्स डिफाइन किए। और रिजॉल्वर मतलब यहाँ से कुछ डेटा पास करना है मुझे क्लाइंट को। सो उसका भी मैंने टाइप्स, ऑब्जेक्ट टाइप एज अ डिक्लेयर करके लैब रिजॉल्वर, उसके अंदर फील्ड रहेगी सक्सेस, मैसेज, आईडी, डेटा। डेटा क्या रहेगा हमारा, ये देखो जेसन ऑब्जेक्ट, ये हमारा अगेन स्केलेबल है। आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जेसन, जेसन क्वेरी ऑब्जेक्ट। अदरवाइज मैं अनदर का एक शो कर देता हूँ, ये देखो रिस्पॉन्स। तो डायरेक्टली मैं क्या किया, डेजिग्नेशन ओके। डेजिग्नेशन हमारा क्या रहेगा, एंटिटी का डेजिग्नेशन रहेगा, ये देखो। तो आप लैब जो है यहाँ पर ए इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि इंपोर्ट किया मैंने एंटिटीज के अंदर, क्या है हमारा लैब एंटिटी, और यहाँ पर हमारा क्या रहेगी लैब क्लास है, और लैब क्लास एज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम मल्टीपल यूज करने वाले हैं ये। सो ये हट जाएगा, या ऐसे भी यूज कर सकते हैं, समझ गए। बट सो मुझे इसे यूज नहीं करना सा, यहाँ पर ग्राफ क्यूएल क्वेरी जेसन के अंदर यूज करना सा, वो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ओके। सो ये हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो है इनपुट, इनपुट के अंदर देखो लैब जो लोगो है, लैब लोगो, या लैब लोगो के अंदर मैंने उसका टाइप डिफाइन किया है अपलोड। सो अपलोड हमने कहा था डिफाइन किया है, कॉमन स्केलर इज कॉमन अपलोड स्केलर। सो हम जाते हैं कॉमन के अंदर, स्केलर के अंदर अपलोड स्केलर डॉट टीएस। सो मैंने फर्स्टली ये इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी ग्राफक्यूएल अपलोड, ओके। ग्राफक्यूएल के अपलोड के अंदर एक मैंने क्लास बनाया है एक्सपोर्ट का, अपलोड का, ओके। उसका स्केलर नाम अपलोड दिया है, डिस्क्रिप्शन लिखा है पार्स वैल्यू, सीरियलाइज वैल्यू और पार्स लिटरल वैल्यूज, उसके अंदर कुछ मैंने पास किया है। सो सिमिलर आपको कॉपी पेस्ट करना है ये कोड, और यही आपको यूज करना है। या एक स्कीमा क्रिएट कर रहे हो, स्कीमा आप यूज कर रहे हो। सो सिमिलर टू यहाँ पर, ओके। जहाँ पर आपको जिस चीज को इमेज आपको अपलोड करनी है, उसका टाइप आपका अपलोड रहेगा, ओके। उसके बाद हम आते हैं हमारे रिजॉल्वर के अंदर। रिजॉल्वर के अंदर हमारे सारे क्या रहेंगे, म्यूटेशन और क्वेरीज रहेगी। सो फर्स्टली हमने सर्विस पर दिए है, लैब सर्विस क्रिएट की है। फिर बाद में देखो यहाँ पर म्यूटेशन रहेगा, उसका रिस्पॉन्स टाइप रहेगा रैप लैब सर्विस, जो हमने सर्विस के अंदर क्रिएट किया था। अब यहाँ पर हमने ऑथेंटिकेशन हैंडल किया है। सो ऑथेंटिकेशन के लिए फर्स्टली मैंने JWT टोकन यूज किया है। सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू, ये हाँ, auth डॉट guard डॉट ts, इसके अंदर हमने ऑथेंटिकेशन यूज किया है। ये देखो हमने क्लास बनाया है इंजेक्टेबल का, एक्सपोर्ट क्लास
authentication, okay, authguard implementation can activity, okay, can activity। इसके अंदर कुछ फंक्शन क्रिएट किया है, एज इट इज आपको फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है और यही यूज करना है। तो यहाँ पर JWT हमने यूज की है, JW के लिए वेरीफाई के लिए मैंने वेरीफाई, और जो हम रन टाइम टोकन यूज पास करेंगे, और कुछ मैंने यहाँ पर टेम्पररी कोड यूज किया है, या आप .env के अंदर भी आप ऐड करके भी वहां से आप रीड कर सकते हो। ओके, और मैंने जो ऑथेंटिकेशन क्रिएट किया है अगेन रिजॉल्व सॉरी सर्विस के अंदर यहाँ पर वो क्रिएट किया है। सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लॉगिन हो गए, ये देखो, या एक्सेस टोकन अवेट JWT साइन, इसके अंदर यूजर आईडी और लैब पास किया है डायनामिकली और कोड पास किया है, तो यहाँ पर एक्सेस टोकन मिल जाएगा। ये एक्सेस टोकन हमारे सर्वर पर जाए, क्लाइंट साइड जाएगा, ओके, और क्लाइंट साइड क्या करेगा, फिर बाद में हमको सर्वर पर भेजेगा, और सर्वर पर आने के बाद वो एक्सेस टोकन हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई है तो हमारा नेक्स्ट फ्लो चालू हो जाएगा। सो सिमिलर यहाँ पर मैंने अगेन यूज कार्ड जो हमारा नेक्स्ट जेएस कॉमन प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर और डॉट ग्राइड कहाँ पर है, एलपी मॉडल सेटिंग्स यूजर, ओके, मॉडल जहाँ पर मैंने यूजर यहाँ पर डिफाइन किया है, सेटिंग के अंदर यहाँ पर यूजर के अंदर ऑथ का ये फाइल इंपोर्ट की है, और ये फाइल में अगेन उसको असाइन कर रहा हूँ। जितने हमारे ऑथेंटिकेशन, जितने हमारी म्यूटेशन और क्वेरीज पास करनी है, सो उसको सबको उसके ऊपर हमको ये डिफाइन करने पड़ेगा। तो ये हमारे हो गई ऑथेंटिकेशन की क्वेरीज और म्यूटेशन। सो इसके अंदर हमने अगेन असिंक्रोनस क्रिएट लैब। अब देखो, आर्गुमेंट आर्गुमेंट इनपुट पास किया, क्योंकि हमने क्लाइंट साइड देखा होगा सबके अंदर इनपुट है, जो आप यहाँ पर पास करेंगे वही आपको यहाँ से पास करना है क्लाइंट से सर्वर। सो इनपुट के अंदर क्या रहेगा, क्रिएट लैब इनपुट। क्रिएट लैब इनपुट हमने इसके अंदर डिफाइन किया है। ये सारे फील्ड हमको क्लाइंट से सर्वर पर मिलने वाले हैं, ओके। और फिर बाद में यहाँ पर कुछ मैंने एक सर्विस, अब देखो रिजॉल्वर के अंदर सिर्फ हम डिफाइन कर सकते हैं क्वेरी रिजोल्यूशन, और सर्विस के अंदर एक्चुअली बिजनेस लॉजिक होता है, ओके, जो हमारे डेटाबेस के टच करना, डेटाबेस से डेटा रीड करना, ये सारा इसके अंदर रहता है। सो हम इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर दिस डॉट लैब सर्विस डॉट क्रिएट, इसके अंदर मैंने इनपुट पास किया। सो हम जाते हैं क्रिएट के अंदर। सो ये देखो लैब सर्विस, फर्स्टली मैंने यहाँ पर ये देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये हमारे इंजेक्टेबल क्लास रहेगा। कंस्ट्रक्टर अंदर इंजेक्ट मॉडल कौन प्रोवाइड करता है, मोंगोस। इसके अंदर लैब डॉट नेम प्रोवाइड लैब मॉडल, इसके अंदर मॉडल लैब डॉक्यूमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हमने लैब नेम यहाँ पर जो पास किया है, यही आपको मॉडल्स के अंदर यहाँ पर सेम पास करना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने टेस्ट डाइट कलेक्शन का नाम डिफाइन किया, तो आपको सर्विस के अंदर जहाँ पर आप डिफाइन करते हो यहाँ पर भी टेस्ट होना चाहिए, यह हमेशा याद रखना, क्योंकि ये एज ए चीज हमारा कलेक्शन का नाम रहता है। सो अगेन हमने लैब डॉक्यूमेंट जो हमने एंटिटीज के अंदर क्रिएट की थी, और यहाँ पर हमारे हमारे उसके क्या क्या ऑपरेशन करना है डेटाबेस के ऊपर, वो हमने ऑपरेशन किया। सो पेलोड के अंदर क्रिएट, उसका टाइप सिमिलर रहेगा। लेट लैब लोगो है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ इमेज है, तो हमने अगेन एक सर्विस क्रिएट की है, फाइल अपलोड सर्विस, उसके अंदर अपलोड करते हैं लैब लोगो जो हमने क्लाइंट से पास किया है, पेलोड। अब लैब लोगो का क्या टाइप है आपको पता ही है, अपलोड टाइप है, ये देखो यहाँ पर। और उसका क्या आपका, हमने ये अपलोड किया है हमारे अजूर के कंटेनर के ब्लॉक के अंदर। सो उसका हमने ये अपलोड फाइल, इसका भी मैं कोड आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा रहेगा सर्विस के अंदर, ओके, हेल्पर के अंदर हम जाएंगे। हेल्पर के अंदर हम सर्विस के अंदर फाइल TSS, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर हमने अजूर डेटाबेस क्लाइंट बनाई है, सर्वर अभी स्टैटिकली हमने एक ऐड की है उसके कनेक्शन, अजूर अजूर की कनेक्शन फाइल यहाँ पर गेट ब्लॉक, ओके। फिर बाद में अपलोड के लिए ये सेम ही चीज अपलोड करना है। सो मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि स्पेसिफिक जो वीडियो क्रिएट किया था मैंने इमेज अपलोड का, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर देखो हमेशा याद रखना कि ब्लॉक डॉट क्लाइंट अपलोड स्ट्रीम करना। यहाँ पर मल्टीपल फीचर आपको मिलते हैं, अपलोड पाथ मिलता है, अपलोड डेटा मिलता है। सो यहाँ पर कभी भी याद रखना कि अपलोड स्ट्रीम करना है, क्योंकि ये स्ट्रीम अपलोड कर रहे हैं।
क्योंकि जो हमारा GraphQL का अपलोड का जो स्केलर है ये हमको स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता है, ना कि डेटा और पाथ। सो आपको कभी भी ब्लॉब क्लाइंट के ऊपर अपलोड स्ट्रिंग को अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी यूआरएल। तो हम जाते हैं लैब सर्विस के अंदर, तो यहाँ पर आपको रिटर्न में यूआरएल मिल जाएगा जो आपने अजूर के जो ब्लॉब कंटेनर के अंदर अपलोड किए उसका यूआरएल मिल जाएगा। फिर बाद में ये मैंने कांस्टेंट इनपुट बनाया है स्प्रेड ऑपरेटर। इमेज का टाइप मैंने लैब इमेज दिया है, डेट लास्ट डेट मैंने यहाँ पर देखो अवेट दिस डॉट लैब मॉडल डॉट क्रिएट। तो ये हमारा डेटा मोंगोडीबी के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, और जैसे रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो रिटर्न मैंने रिकॉर्ड कर दिया। फिर बाद में ये रिजॉल्वर के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा रिटर्न क्या किया मैंने सक्सेस। रिकॉर्ड होगा तो वन वन, मैसेज होगा तो वन। ये जो फॉर्मेट है इसका लैब रिस्पॉन्स के अंदर, यहाँ पर मैंने सक्सेस और मैसेज यहाँ पर मैंने डिफाइन कर। सो इस फॉर्मेट में हमको क्लाइंट को रिप्लाई जाएगा। ओके, सो आई होप कि अंडरस्टैंड हुआ होगा बेटर वे से। सो अगेन मैं अनदर एक म्यूटेशन आपको बताता हूँ। सो ये हुआ हमारा, ये फाइंड के लिए हमें देखो म्यूटेशन सिमिलर लैब रिस्पॉन्स, उसका नाम रहेगा लैब्स, नॉट अ फाइंड ऑल, क्योंकि फाइंड ऑल सबके अंदर है। सो उसका आप म्यूटेशन का यहाँ से नाम डिस्क्रिप्शन मल्टीपल उसके प्रॉपर्टीज आप पास कर सकते हो। सो यूज गार्ड ये रहेगा, फाइंड लैब्स रहेगा। लैब के लिए मैंने अगेन सिमिलर सर्विस क्रिएट की है, काम के लिए काम क्रिएट किया है। फिर बाद में अगेन अपलोड के लिए सॉरी ये रहेगा अपलोड। फिर बाद में म्यूटेशन रिस्पॉन्स लैब रिस्पॉन्स, फिर बाद में ऑथेंटिकेशन हैंडल किया है, अपलोड लैब इनपुट। फिर बाद में यहाँ पर मैंने डेटा अपलोड की, जो हमारा लैब सर्विस है इसके अंदर अपलोड एक सर्विस क्रिएट की है यहाँ पर, और डायनेमिकली डेटा पास कर रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, दिस डॉट लैब मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपलोड। ये मोंगोडीबी इसका एक फीचर फंक्शन है प्रोवाइड करता है, उसके अंदर मैंने उसका आईडी पास किया और ऑल पेलोड पास किया। तो ये हमारा डेटा अपलोड हो जाएगा और रिटर्न ये मिल जाएगा। सिमिलर मैंने जो सिंगल इमेज अपलोड की थी फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से मैंने ये कॉल की थी एक्शन, ये वाली। ओके, अपलोड लैब लोगोस इनपुट सिमिलर पास किया। फिर बाद में ये सर्विस के अंदर आ गई। फिर बाद में यहाँ पर मैंने अगेन वो इमेज हमारे सर्वर पर अपलोड कर दी। सर्वर पर अपलोड करने के बाद उसका पाथ मिल गया, और स्पेसिफिक पाथ मिलने के बाद उसका आईडी और पेलोड के अंदर पूरा हमारा पेलोड का उसका इमेज पास हुआ, और जो रिसेंटली यूआरएल रहेगी अपलोड हो गई। सिमिलर रिमूव के लिए मैंने एक्चुअली क्लाइंट से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पास किया है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने सेपरेट कर दिया, यहाँ पर ए आर आर आई डी। ओके, और यहाँ पर डिलीट मल्टीपल कर दिए डैश आईडी, और यहाँ पर एरे स्ट्रिंग जाएगा। सो एट अ टाइम मल्टीपल आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और सिमिलर मैंने फिर बाद में रिमूव के लिए इनपुट यूज किया है लैब सर्विस लिमो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और यहाँ से मैंने ये रिटर्न किया क्लाइंट को। सो लाइक दिस और ऑल्सो इसको मैं स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये हमारा पैकेज डॉट जेसन रहेगा। पैकेज डॉट जेसन के अंदर स्टार्ट डेव होती है, बट कुछ मैंने स्क्रिप्ट मॉडिफाई कर दी है। सो डेव आपको रन करना है नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट। सो आपको सॉरी 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 या सो यहाँ पर डेव नेक्स्ट जेएस स्टार्ट वॉच। सो मैं अभी नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट रन कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ये क्लियर कर देता हूँ। इसको कॉलअप्स कर देता हूँ, और ये जो है GraphQL डॉट स्कीमा डॉट टीएस इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, और मैं अगेन प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ इंटेंडेंट रेव। अब देखो ऑटोमेटिकली वो फाइल क्रिएट हो जाए जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट होने का। ये देखो GraphQL स्कीमा डॉट GraphQL, इसके अंदर उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट किए सारे टीप
ये GraphQL का जो कोड है उसने म्यूटेशन कॉल की दी, ये तो हमने क्रिएट की। ये किसके अंदर क्रिएट किया है? ये हमने कोड फर्स्ट के अंदर, उसके अंदर सारे डिफाइन किए यूजिंग कोड फर्स्ट। बट ये GraphQL कौन क्रिएट कर रहा है? ये सारा Nest.js और GraphQL टाइप वारिंग क्रिएट कर रहा है। सो ये प्रोजेक्ट मैं फर्स्टली आपको लोकल होस्ट पर रन करके दिखाता हूँ। तो हमारा पोर्ट नंबर और ग्राफ, ओके। देखो स्कीमास के अंदर सिमिलर जो हमने क्रिएट किया है, ये स्कीमा क्रिएट हुए, ये टाइप्स म्यूटेशन ये सारे यहाँ पर क्रिएट हो गए, ओके, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्स के अंदर क्वेरीज यहाँ पर मिल जाएगी। कितनी क्वेरीज है? ये देखो क्वेरीज हो गई सारी। फिर बाद में म्यूटेशन हो गई, जैसे हमने अभी लैब का देखा तो लैब के आपको म्यूटेशन यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि मैं या लैब्स, ओके। तो फाइंड ऑल नहीं आया, लैब्स है क्योंकि उसमें उसका नाम। सो उसको क्या पास करना है? इनपुट चाहिए, उसका टाइप क्या है? लैब इनपुट है। और रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा? रिस्पॉन्स। अब लैब रिस्पॉन्स में क्या क्या मिल जाएगा? पेज इनिशियल इन्फो। पेज इनिशियल इन्फो के अंदर क्या है? काउंट है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रक्चराइजेशन, आपको फ्लोट मिल जाएगा, मैसेज आईडी। डेटा के अंदर हमने एक थर्ड पार्टी का ये यूज किया था, जैसे कि मास्टर ये ग्राफ क्यूएल जेसन, तो उसका टाइप क्या आया? जेसन आ गया। और आर्गुमेंट मतलब आपको क्या पास करना है? इनपुट के अंदर लैब इनपुट, लैब इनपुट के अंदर है पेज है, लिमिट है, एनवी है, रोल है, लैब है और कोड है। तो ये आपको एज इट इज सारी यहाँ पर क्वेरी मिल जाएगी। यहाँ से आप क्वेरीज कॉल भी करके आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। और हमने और एक थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी यूज कर दी थी, तो मेन डॉट पी एस के अंदर किए थे हमने, ये देखो मिडलवेयर यूज किया था हमने एक ऐप डॉट यूज, जो हमारा ये मिडलवेयर ग्राफ क्यूएल का पॉइंट करेगा। सो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ उसकी फाइल। सॉरी सॉरी सॉरी, main dot ps, या ओके, ये एक थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी यूज की है। ये थर्ड पार्टी एक मिडलवेयर लाइब्रेरी, जैसे कि आप, जैसे हमने डॉट ग्राफ क्यूएल डाला, उसकी जगह आप ये डालेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर, जैसे आपको एक डिजाइन एक मिल जाएगी, सारी क्वेरीज उसके कितने कितने ये टाइप्स है, फिर बाद में इनपुट टाइप है, ये सारे ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट किए। उसके बैनर रिस्पॉन्स हो गया, पेज इनिशियल हो गया। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, या एनवायरनमेंट के लिए ये हो गया, ये सारे उसने ऑटोमेटिकली एक ट्री क्रिएट की है कि कहाँ से क्या लिंक है। ये देखो क्वेरीज हमारी इतनी कॉल हुए हैं, सेल्स टीम में इसको क्लिक डायरेक्टली ये सेल्स टीम पर आ जाएगा, उसके अंदर क्या 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 आपके फील्ड है वो सारे ऑटोमेटिकली डिस्कस मतलब शो कर देगा। सो ये किससे लिंक है, रोल्स है, ये सारा आपको इजीली आपको मिल जाएगा। नोटिस बोर्ड है, फिर बाद में यूजर के अंदर यूजर क्या है, लैब यहाँ से यहाँ पर है, ये लैब सारे लिखेंगे। सो ये भी अच्छा है एक्चुअली, बेटर वे। किसी को आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना चाहोगे, करना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये पूरा अंडरस्टैंड हुआ। सो आपको इमीजिएटली नहीं हुआ तो एक बार कोड रिवर्स, मतलब वीडियो रिवर्स करना, स्टेप बाय स्टेप देखना। देखो एक्चुअली मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि मैंने आपको सब कुछ आता है ऐसे कंसिडर करके एक्सप्लेन किया है कि आपको ग्राफक्यूएल आता है, टाइप ओआरएम आता है, और मोंगोडीबी का एज अ गुड नॉलेज है। तो ये वीडियो देखना हो तो थोड़ा सा आपको वो आइडिया होनी चाहिए कि इमीजिएटली आप इस पर आ जाएंगे, चलो मुझे इमेज अपलोड करना है, सो मैं लगे इमीजिएटली ये चेक करके अपलोड, मतलब देख के कर सकता हूँ, नॉट पॉसिबल। सो आपको बेसिक नॉलेज होगा, क्योंकि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि कोड राइट किया है, ऑलरेडी मैंने कोड राइट किया, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो आपको थोड़ा सा पॉज करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, ऐसा इस वे से हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो थोड़ा एक फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आया तो सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इमीजिएटली नहीं आपको समझ में आया तो अगेन अगेन रिपीट करके आप देख लेना। सो डेफिनेटली आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो अगेन आपको कुछ इसके रिलेटेड कुछ इशू या कुछ क्वेरीज हो
तो ज़रूर मुझे कमेंट करना या मुझे ईमेल कर देना। सो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो सो आई विल हेल्प यू, रीच यू। ओके, सो हैव अ नाइस डे, गुड डे। और ऑल्सो गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल कर देना। सो मोस्टली पीपल वॉच करते हैं बट कोई सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर सकता। सो प्लीज सब्सक्राइब, इतना ही मुझे थोड़ा सा ये होता है, मोटिवेशन होता है, और मैं अगेन नए वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। सो टेक केयर और बाय बाय।